Welcome back once again to Angel Chemistry. So today in this video we will discuss about the exercises from the chapter 4 materials, metal and non-metals of class 8. Question number 1. Which of the following can be beaten into thin sheets? आप लोगों को पता ही है कि केवल बीट करने पे थिन शीट में कन्वर्ट मेटल्स ही हो सकते हैं. So we have option A zinc, which is a metal. B, C and D phosphorus, sulfur and oxygen, all three are non-metals. So correct option will be A zinc. Next is, which of the following statement is correct? All metals are ductile. All non-metals are ductile. Generally metals are ductile and some non-metals are ductile. So keep in mind the correct option will be C. Generally metals are ductile. This property, ये किसकी property है? Metals की property है. Not for all metals. Why? Because we have some metals like mercury. Mercury is in liquid state. So उसको हम लोग wires में convert नहीं कर सकते हैं. So option C will be correct answer. Next question is fill in the blanks. Phosphorus is a very dash non-metal. Phosphorus कैसा non-metal है? Reactive. So what you will write here? You will write reactive non-metal. Metals are dash conductor of heat and dash. So metals are good conductor of heat and electricity. Clear? Next is iron is dash reactive than copper. So more or less the answer will be more. Iron जो है वो copper से ज़्यादा reactive है. Next is metal reacts with acid to produce which gas? Hydrogen gas. Hydrogen gas. Clear? So this is all about the fill in the blanks. Next one is true and false. Generally non-metals react with acid. False. Non-metals acid के साथ react ही नहीं करते हैं, बहुत rarely react करते हैं. Sodium is very reactive metal. True. Copper displaces zinc from zinc sulfate solution. No, so it is false. Why? Because copper is less reactive than zinc. Coal can be drawn into wires. False. Coal को हम लोग wires में draw नहीं कर सकते. Why? Because it is a non-metal. So this is all about this slide. Next question. Some properties are listed in the table. Distinguish between the metals and non-metals. हमको properties दी हुई हैं. इन properties के basis पे हम लोग metals और non-metal को distinguish करते हैं. So here we have the correct answer. You can see. Then we will compare it. See this appearance. Appearance में metal कैसे होते हैं? Shiny होते हैं. So they have lustre or they are lustrous, while non-metals are dull. Hardness, metals are hard, while non-metals are soft. Malleability, metals can be beaten into thin sheets. This is the property of metal, and non-metals cannot be beaten into thin sheets. Next is ductility. Metals can be drawn into wires, but non-metals cannot be. Heat conduction, metals are good conductor of heat and non-metals are the poor conductor of heat. The same way, conduction of electricity, metals are good conductor of electricity and non-metals are poor conductor of electricity. Next one. Aluminium foil are used to wrap food item. क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है गिव रीजन.
कि एल्यूमिनियम फॉइल को जो है हम लोग फूड रैपिंग के लिए ही क्यों यूज करते हैं. सो देयर आर टू थिंग्स. फर्स्ट वन, एल्यूमिनियम इज अ मेटल, ऑल ऑफ यू नो दैट, एंड इट कैन बी इजीली बीटन इनटू थिन शीट. उसकी फॉइल बनाना बहुत ही आसान है. सो आंसर यू कैन सी हियर, aluminum foil are used to wrap food items because aluminum is a metal which is malleable, therefore it can be beaten into thin foils. Got the answer? Next one, immersion rod for heating liquids are made up of metallic substances. ये हमसे कह रहा है कि पानी गर्म करने के लिए जो रॉड आती है ना, लिक्विड्स को गर्म करने के लिए जो रॉड आती है, इमर्जन रॉड, वो मेटेलिक सब्सटेंस की ही बनी होती है. क्यों? द आंसर इज मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स कैसे होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इसीलिए इमर्शन रॉड किससे बनी हुई होती है? मेटेलिक सब्सटेंस से बनी होती है. नेक्स्ट, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन. कॉपर जो है वो जिंक को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर सकता. एज यू नो, फॉर डिस्प्लेसमेंट reaction, a strong metal displaces a less reactive metal from its solution. तो कॉपर और जिंक में से कॉपर जो है वो लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो ये रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है. वाई? बिकॉज द कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, और वी कैन से जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो देर इज नो रिएक्शन बिटवीन कॉपर एंड जिंक सल्फेट. रिएक्शन होगा ही नहीं. नेक्स्ट वन, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन. सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में क्यों स्टोर करते हैं? बिकॉज सोडियम एंड पोटेशियम आर वेरी हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड दे कैन बी इजीली रिएक्ट्स विद मॉइस्चर और एयर एंड स्टार्ट बर्निंग. इतने हाईली रिएक्टिव होते हैं कि सोडियम और पोटेशियम अगर केरोसिन में ना रखा जाए तो वो क्या करते हैं? एयर के कांटेक्ट में आकर के जलने लगते हैं. दैट्स वाई वी हैव टू कीप देम इन केरोसिन. कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एल्यूमिनियम यूटेंसिल. ये हमसे पूछ रहा है कि क्या हम लेमन पिकल जो है, नींबू का अचार, उसको हम क्या एल्यूमिनियम के बर्तन में रख सकते हैं? द आंसर इज नो, वी कैन नॉट. वाई? बिकॉज देयर विल बी रिएक्शन बिटवीन. Just to see the answer, we cannot store. First answer is this, है ना? Now the explanation is given here. Lemon contains acid and aluminium utensil is aluminium metal. So metal will react with acid present in lemon to produce hydrogen gas. क्योंकि हमको पता ही है कि मेटल अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो कौन सा गैस प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोजन गैस. एंड हाइड्रोजन गैस विल स्पॉइल द फूड. हमारा फूड जो है, जैसे पिकल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा. मैच द फॉलोइंग. गोल्ड, थोड़ा सोचिए, गोल्ड कॉलम 1 किससे मैच होगा? गोल्ड विल मैच विद ज्वेलरी. आयरन विद मशीनरी. Aluminium, wrapping food items. Carbon, it is a non-metal used as a fuel. Copper is a good conductor, so electric wires will be made by copper. Mercury, which is a liquid form of a metal, it is found in liquid form, so it is used in thermometers. Next question, dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. It is asking what happens when dilute sulfuric acid is poured on a copper plate. पूछ रहा है कि क्या होता है जब dilute sulfuric acid, किसी सल्फ्यूरिक एसिड को कॉपर प्लेट पे गिराया जाए. ओके, एंड द अनदर क्वेश्चन इज आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. राइट वर्ड इक्वेशन फॉर ऑफ द रिएक्शंस इन्वॉल्व्ड. सो लेट्स सी द आंसर. मैं आपको बता दूं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को जब कॉपर प्लेट में डालते हैं, सो कॉपर बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल है. जनरली
when metals treated with acid, they produce hydrogen gas. But as the copper is very less reactive metal, what happens? No reaction will be carried out, hence no product will be formed. जब रिएक्शन होगा ही नहीं तो कोई प्रोडक्ट भी फॉर्म नहीं होगा और इसका वर्ड इक्वेशन लिखना भी पॉसिबल नहीं है. और अदरवाइज वी कैन राइट इट लाइक दिस: कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, एरो बनाकर लिख देंगे नो रिएक्शन. नाउ आंसर बी. आयरन nails are placed in copper sulfate solution. So we know that iron, this is iron Fe, it is placed in copper sulfate CuSO4. क्योंकि हमको वर्ड इक्वेशन लिखना है तो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे. When it reacts with copper sulfate, iron reacts with copper sulfate. As we know, iron is more reactive than copper. So what happens? It will displace copper from copper sulfate. So we will get the products iron sulfate and copper here. Clear? And the reaction, you can see here this reaction. In words we can write iron being more reactive displaces copper from copper sulfate solution. In this reaction the blue color of copper sulfate fades and there is deep deposition of copper on the iron nail. कहने का मीनिंग ये है कि कॉपर सल्फेट जिसका कलर ब्लू है तो वो ब्लू कलर धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, फेड होने लगता है. Next question is this: Saloni took a piece of burning charcoal. सलोनी ने एक जलता हुआ चारकोल लिया है and collected the gas evolved in the test tube. और उस जलने के बाद जो गैस रिलीज हुआ है उसको उसने क्या किया है? एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट किया है. Now we have two questions. This is the situation given to you. How will she find the nature of the gas? पहले तो ये कि उस गैस का नेचर कैसा है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक. नेक्स्ट वन, राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन फॉर ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन दिस प्रोसेस. सो लेट्स सी द आंसर. एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर इन अ टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग गैस. क्या करेंगे हम? पहले गैस को कलेक्ट कर चुके हैं टेस्ट ट्यूब में, अब उसमें हम लोग फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर डालेंगे और तेजी से उसको शेक करेंगे कवर करने के बाद. सो कवर करने से टेस्ट ट्यूब से गैस बाहर नहीं निकलेगी. एंड आफ्टर शेकिंग व्हाट हैपन्स? टेस्ट द सॉल्यूशन विद ब्लू लिटमस पेपर एंड रेड लिटमस पेपर. सो व्हाट हैपन्स? इट विल टर्न ब्लू लिटमस रेड. रेड लिटमस पेपर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट ब्लू लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? ब्लू लिटमस पेपर बिकम्स और टर्न्स रेड. सो ब्लू लिटमस पेपर अगर रेड होता है तो कि क्या नेचर हुआ उसका? द गैस इज एसिडिक इन नेचर. क्लियर? नेक्स्ट वन जो रिएक्शन लिखनी है, चारकोल विच इज अ कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. क्योंकि आप उसको जला रहे हो तो रिएक्शन किसके साथ करना पड़ेगा? उसका ऑक्सीजन के साथ में. सो कार्बन विद ऑक्सीजन गिव्स CO2 गैस. और इस CO2 गैस को हमने कलेक्ट किया है टेस्ट ट्यूब में एंड देन दिस गैस इज मिक्सड विद वाटर to produce an acid which is called as carbonic acid. Formula is H2CO3. This carbonic acid is acidic in nature. It turns blue litmus paper in red. Next question. One day Rita went to a jeweler's shop with her mother. Her mother gave an old jewelry to the goldsmith to polish. रीटा अपनी मदर के साथ ज्वेलर शॉप पे गई है और उसकी मदर ने ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी जो है वो गोल्ड स्मिथ को पॉलिश के लिए दिया. पुरानी जो सोने की ज्वेलरी थी वो गोल्ड स्मिथ सुनार को दिया हुआ है पॉलिश करने के लिए. नेक्स्ट डे व्हेन दे ब्रॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट. कैन यू सजेस्ट अ रीजन फॉर द लॉस इन वेट? तो नेक्स्ट डे जब उसने ज्वेलरी फिर से कलेक्ट किया गोल्ड स्मिथ से तो उसने ये पाया कि ज्वेलरी के वेट में थोड़ा सा लॉस हुआ है. तो हमको बताना है, ये सिचुएशन हमको दी हुई है कि किस वजह से, क्या रीजन है जिसकी वजह से ये ज्वेलरी में लॉस हुआ है वेट का. सी, टू पॉलिश a gold ornament it is dipped in a liquid and the liquid is called as aqua regia.
which is a mixture of hydrochloric acid and nitric acid. हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड को 3:1 रेशियो में मिक्स किया जाता है. क्लियर? और इस मिक्सचर को हम लोग कहते हैं एक्वा रेजिया. क्लियर? ऑन गेटिंग द एनवायरनमेंट ऑफ एक्वा रेजिया द आउटर लेयर ऑफ गोल्ड डिजोल्व्स. तो पॉलिश करने के लिए जब उसको उस सॉल्यूशन में डिप करेंगे जो कि एक्वा रेजिया है, तो वो क्या करेगा? गोल्ड की आउटर लेयर को डिसॉल्व कर लेगा. तो इनर लेयर ऑटोमेटिकली कैसी दिखाई देगी? शाइनी दिखाई देगी. द डिसॉल्विंग ऑफ द लेयर कॉजेज अ रिडक्शन इन द वेट ऑफ द ज्वेलरी. क्योंकि टॉप मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो है वो डिसॉल्व हो चुकी है, तो ज्वेलरी का वेट जो है वो किस तरह से दिखाई देगा? लॉस्ट दिखाई देगा. क्लियर? So this is all about all the question and exercises of this chapter. I hope all of you have understood all the questions. Like, comments and share the video. Do not forget to subscribe the channel. Thank you and have a good day.